ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرد اور برساتی شام شہزادہ منصور اپنے محل سے نکل کر دور کہیں تنہا نکل گیا۔ وہ خیالوں میں کھویا ہوا چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ آسمان پر گھنے بادل چھا چکے تھے اور بارش زوروں پر تھی۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک پرانے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے اور سردی کی ٹھنڈی ہوا سے وہ کانپنے لگا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک مکان کے سامنے جا پہنچا، جہاں اس نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بارش میں بھیگتا، سردی سے کانپتا، وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑا رہا، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ دروازہ بند تھا اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شہزادے نے بار بار دستک دی، مگر اندر خاموشی چھائی رہی۔ دل میں امید تھی کہ کوئی آئے گا، ایک شہزادے کو یوں دروازے پر کھڑا دیکھ کر شاید کوئی بے نیازی نہ برتے۔ جب کچھ نہ ہوا تو اس نے پھر نظریں دوڑائیں۔ ایک اور مکان دکھائی دیا، روشنی بھی جھلک رہی تھی۔ وہ اس طرف بڑھا۔ یہاں ایک بوڑھیا رہتی تھی جو عام نظر آتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، لالچ کی چمک۔ شہزادے نے پناہ مانگی، لیکن بوریا نے اسے اپنے گھر پناہ دینے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور جب اس نے اشرفیوں کا وعدہ کیا تو بڑھیا مان گئی، مگر یہ مہربانی مشروط تھی۔ گھوڑے کی جگہ الگ تھی اور اس کے بدلے مزید قیمت مانگی گئی۔ جادو کے ایک کمال سے بڑھیا نے گھوڑے کو بلی جتنا چھوٹا کر کے مرغیوں کے ڈربے میں رکھ دیا۔ شہزادہ حیران رہ گیا، مگر خاموش رہا۔ گھر کے اندر ماحول عجیب تھا۔ پرانے فرنیچر اور خاموش دیواروں کے بیچ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ شہزادے کو خوش آمدید کہتی، باتوں سے لبھاتی اور اس کی موجودگی کو ایک انمول تحفہ سمجھتی تھی، مگر شہزادے کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ یہاں مجبوری میں آیا تھا۔ یہاں کی فضا میں مصنوعی خوشی اور مفاد کی بو تھی۔ جلد ہی اسے ایک اور کمرہ دیا گیا، جہاں ایک دوسری لڑکی موجود تھی، رخسانہ۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں سچائی اور نرمی جھلکتی تھی۔ وہ شہزادے کا بستر درست کر رہی تھی اور اس کی آواز میں وہ اپنائیت تھی جو کسی اجنبی کو بھی اپنا بنا لے۔ شہزادے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس عجیب گھر کا سب سے روشن اور بے غرض گوشہ ہے۔ رخسانہ سوتیلی تھی اور اس پر ظلم ہونا گھر کی عام روایت تھی، مگر اس نے شکوہ نہیں کیا، صرف حالات کو قبول کیا ہوا تھا۔ شہزادے نے اس کی حالت دیکھی، سنی اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ یہ لڑکی ایک شہزادی بننے کی حقدار ہے۔ رخسانہ نے جب شہزادہ منصور کے کپڑے بھیگے دیکھے تو اس نے چمنی میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی اور دونوں اس کے پاس بیٹھ گئے تاکہ شہزادہ گرم رہ سکے۔ آتش دان میں آگ دہکنے لگی اور سردی کا زور ٹوٹنے لگا۔ رخسانہ اب صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں رہی تھی، وہ شہزادہ منصور کے دل میں امید کا ایک چراغ جلانے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف بوڑھی عورت سعیدہ اور شہزادے کی شادی کے منصوبے بنانے لگی۔ رخسانہ نے کھانے کے لیے بلایا۔ شہزادہ منصور، بوڑھی عورت اور سعیدہ دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ رخسانہ ایک طرف کھڑی رہی تو شہزادے نے اسے ساتھ بیٹھنے کو کہا، مگر بوڑھی عورت نے اسے برتن دھونے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر کھانا بچا تو اسے دے دیا جائے گا۔ رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کو غصہ آیا اور اس نے بوڑھی عورت اور سعیدہ کے رویے پر احتجاج کیا۔ جب شہزادے نے کہا کہ وہ رخسانہ سے شادی کرے گا تو ماں بیٹی دونوں حیرت زدہ رہ گئیں۔ بوڑھی عورت نے اسے اپنی بیٹی کی شکل یاد دلائی، جس پر شہزادے نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف رخسانہ ہی سے کرے گا اور کسی سے نہیں۔ سعیدہ رونے لگی۔ رخسانہ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، مگر بوڑھی عورت نے کوئی جادوئی حرکت نہیں کی۔ کچھ دیر سوچ کر بوڑھی عورت نے رخسانہ کی شادی کی اجازت دے دی۔ رخسانہ بوڑھی عورت کے مان جانے پر حیران رہ گئی، جبکہ سعیدہ کو اپنی ماں پر شدید غصہ آیا اور اگلے دن شہزادہ محل واپس چلا گیا۔ شہزادے نے دوست انور کو سارا واقعہ سنایا، جو اس کے باورچی کا بیٹا تھا، اور کہا کہ وہ رخسانہ کا رشتہ طے کرنا چاہتا ہے۔ پورا واقعہ سننے کے بعد انور کو شک ہوا کہ بوڑھی عورت ضرور کوئی چالاکی کرے گی۔ شہزادہ بھی اب پریشان ہونے لگا، مگر انور نے تسلی دی کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ ادھر بوڑھی عورت اپنی بیٹی سعیدہ کو یقین دلانے لگی کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گی۔ رخسانہ اچانک وہاں آ گئی تو بوڑھی نے جادو سے اسے بے ہوش کیا اور اندھے کنویں میں قید کر دیا۔
फिर उसने सईदा को एक जादुई फूल दिया और कहा, ये फूल सूंघते ही तुम बिल्कुल सईदा जैसी बन जाओगी और शहजादा तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। सईदा इस पर बहुत खुश हुई और जैसे ही उसने फूल सूंघा वो बिल्कुल सईदा जैसी दिखाई देने लगी। बूढ़ी ने उसे याद दिलाया कि अब वो रखसाना है, सईदा नहीं, और ये राज इन दोनों के दरमियान रहेगा। दोपहर के सुनसान घड़ियों में माँ और बेटी को शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। सईदा, जो खाना पकाने से नावाकिफ थी, और बुढ़िया, जो काम से कितराती थी, इस हालत में थी कि अगर रुखसाना वहां होती तो शायद उन्हें भूख का सामना न करना पड़ता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अजनबी लड़का दाखिल हुआ जिसने नौकरी की इल्तजा की। बुढ़िया ने अपनी ज़रूरत के पेश नज़र उसे घर में मुलाजिम रख लिया, हालांकि उसका वादा था कि तनख्वाह नहीं दी जाएगी। लड़के का नाम अनवर था और वो खाना पकाने और सफाई के माहिर था। जब अनवर ने सईदा को देखा तो हैरत में पड़ गया। इसके दिल में शबह जागा कि शायद ये लड़की रुखसाना है। बुढ़िया ने सईदा को जादुई फूल संभालने का मशूरा दिया, जिसकी खासियत ये थी कि अगर वो पानी में गिरा तो सईदा अपनी असल सूरत में वापस आ जाएगी। जबकि अनवर ने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली। अनवर ने समझ लिया कि बुढ़िया ने असली रुखसाना को कहीं छुपा रखा है और सईदा सिर्फ उसका बदल है। इसी दौरान तेज हवाएं चलने लगीं और बूढ़ी औरत की आवाज गरजने लगी कि उसका भाई जादूगर जलजला मुलाकात को आ रहा है। जलजला आया और दोनों ने पुरानी बातों को दोहराते हुए सुतीली बेटी रुखसाना की शादी के वादे का जिक्र किया। बूढ़ी ने कहा कि असल रुखसाना एक वीरान कुएं में कैद है और जो लड़की यहाँ है वो असल नहीं बल्कि शक्ल बदली हुई सईदा है। अनवर ने छिपकर उनकी बातें सुनी, मगर जल्द ही सईदा ने उसे पकड़ लिया। खौफनाक अंदाज में वो उससे सच पूछने लगी। अनवर ने उसे काबू पाकर एक बड़े थैले में कैद कर दिया। वो थैला अपने कंधे पर लाद कर और वही जादुई फूल लेकर रुखसाना को बचाने निकल गया। वो कुएं पर पहुंचा, अंदर उतरा और असली रुखसाना को निकालकर सईदा को वहां बंद कर दिया। रुखसाना जब होश में आई तो अनवर ने उसे सारी हकीकत बताई और उसे तसल्ली दी कि वो जल्द बूढ़ी और जलजला का भेद खोल देगा। दोनों घर पहुंचे तो बूढ़ी और जलजला आपस में बातों में मसरूफ थे। अनवर छिपकर बाहर खड़ा रहा, जबकि रुखसाना सईदा का रूप धार कर आहिस्ता आहिस्ता अंदर बुजुर्ग औरत के पास चली गई। और जब जलजला कुएं में कर रुखसाना को ले जाने निकला तो अनवर भी पीछे पीछे चला। जलजला कुएं तक पहुंचा और वो बड़ा थैला जिसमें सईदा कैद थी अपने कंधे पर लाद कर खामोशी से अपने तारीक घर की तरफ रवाना हो गया। जबकि अनवर खामोश कदमों से उसका मुसलसल पीछा कर रहा था। वो जादूगरों की बस्ती पहुंचे जहां जलजला एक खूबसूरत मकान में दाखिल हुआ। अनवर ने भी बगैर खौफ के अंदर घुसकर इस मकालमे को सुना जिसमें जलजला और इसका बेटा रुखसाना के मुतालिक बात कर रहे थे। आखिरकार अनवर जलजला और उसका बेटे के सामने आ गया। उसे देखकर दोनों की आंखों में हैरत और गुस्से की चमक उभर आई। अनवर ने बताया कि वो शहजादे का दोस्त है और बूढ़ी औरत की मकरो फरेब को बेनकाब करने आया है। ये लड़की रुखसाना नहीं बल्कि सईदा है जिसने जादू से रुखसाना का रूप धारा हुआ है। ये सुनकर दोनों बाप बेटे एकदम हैरान रह गए। जलजला ने जल्दी से कुछ मंत्र पढ़कर फूंका, मगर सैयदा की शक्ल बदलने की बजाय वो रुखसाना की ही सूरत में रही। इस पर जलजला का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अनवर ने सख्त रवैया अख्तियार किया और अपनी बात पर इसरार किया, जिससे दोनों के दरमियान तनाव बढ़ गया। अनवर ने मेज पर पड़े एक जादुई फूल को पानी के गिलास में डाल दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये फूल पानी में डालते ही सईदा को अपनी असली हालत में वापस ले आएगा। जैसे ही फूल पानी में गिरा, गहरे सरख धुएं की एक घटा निकली जो सईदा के चेहरे को घेर गई और सईदा अपनी असल शक्ल में वापस आ गई। जादूगर का बेटा इस मंजर को देखकर सख्त गुस्से में आ गया। वो फौरन सजा देने के इरादे से वहां से रवाना हुआ, मगर अनवर ने उसे रोक कर खबरदार किया कि पहले बुढ़िया की बेटी का कुछ इंतजाम करना जरूरी है, वरना उसके जाने के बाद वो उसके बाप को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर जादूगर का बेटा थोड़ा रुक गया और फिर मंसूबा बंदी करने के बाद सईदा को जादू के एक मजबूत पंजरे में कैद कर दिया। जादूगर का बेटा रवाना होते ही अनवर दौड़ता हुआ बुढ़िया के घर की तरफ पहुंचा।
दरवाजा बंद था, उसलिए उसे दीवार फलांग कर अंदर जाना पड़ा। बुढ़िया अपने कमरे में गहरी नींद में थी। अनवर खामोशी से रुखसाना के कमरे की तरफ बढ़ा, जो भी गहरी नींद में थी। उसे जल्दी से जगाया और वो फौरन जाग गई। घबराई हुई आंखों से अनवर को देखने लगी। अनवर ने उसे जल्दी से वहां से निकलने का कहा, क्योंकि बुढ़िया और जादूगर के बेटे के दरमियान जबरदस्त झगड़ा होने वाला था। दोनों जल्दी से घर से बाहर निकले ही थे कि बाहर से दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। अनवर ने फौरन रुखसाना को करीब ही लगे बरगद के दरख्त पर चढ़ने का इशारा किया। वो दोनों तेजी से दरख्त की शाखों पर चढ़ गए और घने पत्तों के पीछे छिप गए ताकि देखा जा सके कि क्या हो रहा है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी जाती रही। बुढ़िया की आंख खुली, वो दरवाजा खोलने के लिए गई, मगर अचानक दरवाजा जोर से धक्का खाकर अंदर जा गिरा। वो उसी जगह रुक गई और जादूगर के बेटे को गुस्से से घूरते हुए देखने लगी। जादूगर के बेटे ने शदीद गुस्से में बुढ़िया को धमकाया कि उसकी मुकारी का अंजाम देख ले, और फिर एक अंडा उसके सामने फेंका जो धमाके के साथ फट गया। फौरन चारों तरफ आग भड़क उठी और बुढ़िया आग के घेराव में आ गई। बरगद के दरख्त पर छिपे हुए अनवर और रुखसाना ने ये सब हैरत और खौफ से देखा, क्योंकि अब हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। बुढ़िया ने जब जमीन पर अपना एक पांव जोर से मारा तो जमीन में कई सोराख फट पड़े और इन सोराखों से पानी की तेज तेज धाराएं निकली जो आग की लपटों को फौरन बुझा गईं। चंद लम्हों में पानी भी गायब हो गया। बुढ़िया के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। उसने जादूगर के बेटे को धमकी दी, कहा कि भाई की औलाद न होती तो उसे यकसर नेस्त व नाबूद कर देती, और उसे फौरन वहां से दफा होने का हुक्म दिया। जादूगर के बेटे ने अपने हाथ को आसमान की जानिब बुलंद किया तो अचानक आसमान में बिजली की चमक सी हुई और 5 तेज नेज़े सनसनाते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। बुढ़िया ने फौरन अपने मंत्र पढ़कर उन्हें फेर दिया और वो नेज़े पलटकर जादूगर के जिस्म को छीदते हुए गुजर गए। जादूगर दर्दनाक चीखें मारता हुआ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ गया। देखते ही देखते जलजला के बेटे की लाश हुआ में बुलंद होने लगी। उसकी मौत के साथ ही बुढ़िया का दिल दहल गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब जादूगर के बेटे की लाश इसके बाप के पास जाएगी और वो इंतकाम के लिए वापस आएगा। डर के मारे बुढ़िया ने अपना सारा कीमती सामान जल्दी से एक जगह बंधा और अपनी बेटी सईदा को पुकारना शुरू किया, मगर जवाब न मिला, क्योंकि सईदा जलजला जादूगर की कैद में थी। बुढ़िया पागलों की तरह पूरे घर में उसे तलाश करने लगी। इस दौरान अनवर और रुखसाना खामोशी से इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। अचानक तेज हुआ चली और गर्ज चमक के साथ जलजला जादूगर आ पहुंचा। कंधे पर सईदा थी। बुढ़िया ने उसकी आमद देखकर अपने गुस्से और खौफ को छिपाने की कोशिश की। जलजला जादूगर ने अपनी सख्ती और ताकत दिखाते हुए कहा कि उसने अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेना है और वो सईदा को कत्ल नहीं करेगा, बल्कि उसे एक छोटी सी चिड़िया बनाकर जंगलों में उड़ने पर मजबूर कर देगा। जादूगर ने सईदा पर जादू किया और वो तड़पती हुई जमीन पर गिरी। फिर अचानक एक सलेटी रंग की छोटी चिड़िया बनकर तेज रफ्तारी से वहां से गायब हो गई। बुढ़िया ने अपनी बेटी की यह हालत देखकर कड़क कर बोली कि उसका सारा मंसूबा खाक में मिल गया, क्योंकि जादूगर और उसका बेटा उसका ख्वाब चुरा कर ले गए। जलजला जादूगर ने बुढ़िया को इल्जाम दिया कि उसने अपनी लड़की की शक्ल अपनी सौतीली बेटी रुखसाना जैसी कर दी थी ताकि उसे धोखा दे सकें, और दोनों के दरमियान सख्त बहस और जदल शुरू हो गया। वो एक दूसरे पर जादू के जबरदस्त वार करते रहे और आखिरकार जादूगर ने जोरदार वार से बुढ़िया को खत्म कर दिया। बुढ़िया के मरते ही एक जोरदार आंधी चली, जिसने जिस दरख्त पर रुखसाना और अनवर छिपे थे उसे जोर जोर से हिलाया, मगर खुदा का शुक्र कि आंधी का जोर कम हुआ। नीचे उतरकर उन्होंने देखा कि न जादूगर था न बुढ़िया की लाश। दोनों जल्दी से वहां से रवाना हो गए। सुबह हो चुकी थी जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हुए। शहजादा मंसूर ने रुखसाना को अनवर के साथ देखकर हैरत का इजहार किया। बादशाह और मलका को मालूम हुआ कि शहजादा इस लड़की से शादी करना चाहता है। अनवर ने शहजादा को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह मुकार जादूगरनी ने अपनी बेटी को शहजादे की बीवी बनाने की साजिश की, मगर अनवर की चालाकी ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। चंद दिनों बाद शहजादा और रुखसाना की शादी हो गई और वो खुश व खर्म जिंदगी गुजारने लगे।
شہزادہ نے بادشاہت سنبھالنے کے بعد اپنے دوست انور کو وزیر مقرر کیا، جس نے اپنی حکمت عملی سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ Thanks for watching. Subscribe to Kahani Wala for more stories. Press the bell icon for updates.